Today I start from question number 6. Rita goes 20 km toward east from point A to point B. From point B, she moves 30 km toward west along the same route. If the distance toward east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled toward west? By which integer will you represent her final position from A? मीन्स रीता यहाँ पर दो डायरेक्शन है, ईस्ट और वेस्ट. ईस्ट में जो है वो ए से बी पोजीशन पे जा रही है 20 किलोमीटर, और फिर बी पोजीशन से वो मूव करती है वेस्ट की साइड को 30 किलोमीटर. अब हमसे पूछा है, अब हमें बताया है, इन्फॉर्मेशन गिवन है, इफ़ द डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, कि अगर यहाँ पर दो डायरेक्शन है ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट वेस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में है, और ईस्ट की डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं तो पूछा हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड वेस्ट. वेस्ट की साइड का जो डिस्टेंस है उसको आप किस इंटीजर में मेजर करेंगे. तो ये हो जाएगा, ये जो डायरेक्शन है ईस्ट वाली, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर में रिप्रेजेंट करते हैं तो वेस्ट की जो डायरेक्शन होगी उसे हम नेगेटिव इंटीजर में रिप्रेजेंट करेंगे. देन नेक्स्ट पार्ट, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए. ए से जो उसकी फाइनल पोजीशन होगी वो आपको मेजर करनी है, कितनी होगी. सो द सॉल्यूशन इज ए बी पोजीशन ईस्ट एंड वेस्ट. रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. ए से बी तक की डिस्टेंस हमें गिवन है 20 किलोमीटर. फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट. बी से वो 30 किलोमीटर जो है वेस्ट की साइड को मूव करती है. अब 20 तो ये है, तो इट मीन्स 30 यहाँ कहीं होगा, वेस्ट की साइड को मूव करिए. पता नहीं हमें कौन सी पोजीशन, तो हमने लेट कर लिया कि ये पोजीशन है, इसको हमने नाम दे दिया सी. यहाँ से यहाँ तक की हमें डिस्टेंस गिवन है 30 किलोमीटर. If the distance toward, how will you represent the distance traveled toward west? By which integer will you represent her final position from A? A से final position, यानी हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है. A से C तक की डिस्टेंस कितनी होगी ये हमें मेजर करनी है. सो डिस्टेंस फ्रॉम A to B is given 20 किलोमीटर. Now distance from B to C is 30 kilometer. Now we find distance from A to C. B to C distance given 30, A to B given है 20. तो ये 30 minus 20, हमें यहाँ से फाइंड करना है, यानी कि 20 देन माइनस 30. A to C 20 माइनस 30 माइनस 10 किलोमीटर. thus रीता is at final position from A to C is minus 10 किलोमीटर. माइनस ये अगर ये पॉजिटिव इंटीजर का सपोज ये जीरो है, जीरो पोजीशन है, जीरो से 20 किलोमीटर और जीरो से नेगेटिव साइड को है, इसलिए ये जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव में आई है, minus 10 किलोमीटर. नाउ 7th क्वेश्चन. In a magic square, each row, column and diagonals have the same sum. Check which of the following is a magic square. There are two squares. This is a square. This is a square. The horizontal lines called rows. There are 3 rows, and the vertical lines are called columns. It means row first row R1, second row R2, and third row R3. And the vertical lines are called columns. C1 first column, second column, and third column. And these the slanting lines are called diagonals. There are 2 diagonals. So if the sum of all these rows, 3 columns and 2 diagonals are equal, then it is called magic square. So first of all we find the sum of first row. First row, they are called R1. 5 minus 1 and minus 4. 5 plus
-1 -4. So 5 plus minus -1 plus minus -4 and 5 minus minus plus 4 and 1 5 5 5 0. Now we find the sum of second row. Second row, -5 plus -2 and plus 7. -5 plus minus -2 plus 7. So minus minus plus 5 and 2 7, and the 5 is a greater integer and its sign is negative, so the answer will be negative. 7 minus 7 is 0. Now the third row. Second row is called R2, R3. Third row, 3, 0, 3 and -3. 0 plus 3 plus -3. So 0 plus 3 plus -3. 3 minus 3 is 0. Now we find the sum of first column. It's called C1. First column. 5 minus 5 and 0. So 5 plus -5 plus 0. So 5 plus minus -5 plus 0. So 5 minus 5 is 0. C1. Now second column. C2. C2 is -1, -2 and 3. Integer are -1 plus -2 and plus 3. -1 plus -2 plus 3. -1 and -2. Minus plus 2 plus 1 3. And 2 is a greater number and its sign is negative. So the answer will be negative. -3 plus 3. So plus minus 3 minus 3 is 0. Now third column. Third column is -4, 7 and -3. Integers are -4, C3, -4 plus 7 plus -3, -4 plus 7 plus -3, minus plus and minus plus, so minus and minus. So 4 plus 3 is 7 and -7 plus 7, 0. Now we find the sum of diagonals. First diagonal, D1. This is first diagonal, 5. These integers are 5, -2 and 3. Now find the sum of these integers. 5 plus -2 plus -3. So 5 plus -2 plus -3. So 5 minus plus 3 plus 2 is 5 and sign negative. 5 minus 5 0. Second diagonal, this -4, -2 and 0. Now find the sum of these integer. -4 plus -2 and plus 0. -4 plus -2 plus 0. Minus plus 4 plus 2 is 6, -6. मैजिक स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना था कि जितने भी 3 रोज़ हैं उनका सम, 3 कॉलम्स का सम और 2 डायगोनल्स का सम इक्वल हो. तो यहाँ सबका सम 0. R1 फर्स्ट रो 0, सेकंड रो 0, थर्ड रो 0, फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड कॉलम 0, थर्ड कॉलम 0 एंड फर्स्ट डायगोनल 0, बट सेकंड डायगोनल इज़ -6. तो यहाँ सबका सम 0 नहीं आया. एक यूनिट हमारी जो है वो -6 आ गई. इट मीन्स ये मैजिकल स्क्वायर नहीं है. सो दिस इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर. Second part is your homework. Now 8th question, verify a minus b equals to a plus b for the following values of a and b.
a इक्वल्स टू 21 एंड b इक्वल्स टू 18। यहाँ पर हमें a और b की वैल्यूज़ गिवन है और हमें वेरीफाई करना है कि ये इसके इक्वल होगा, यानी कि a माइनस b इक्वल्स टू a प्लस b के इक्वल होता है, ये प्रूफ करना है। सो द सॉल्यूशन इज a इक्वल्स टू 21, b इक्वल्स टू 18। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू पार्ट्स, LHS साइड एंड RHS। LHS is a minus b. A is 21 minus b is 18. 21 minus plus. So 39. Now we solve the RHS part. RHS is a plus b. A is 21 plus b is 18. 39. So LHS equals to RHS. It verified. देखिए इसमें हमें वेरीफाई करना था कि a माइनस बी इक्वल्स टू a प्लस बी के इक्वल होता है, ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होती। तो हमने एक क्वेश्चन जो तो फर्स्ट पार्ट था जो वैल्यू गिवन थी a इक्वल्स 21 और b इक्वल्स टू 18, इसके लिए सॉल्व कर लिया। इसके लिए हमने सॉल्व किया और हमारा आंसर जो है LHS 39 आया और RHS भी 39 आया। इट मीन्स दोनों पार्ट इक्वल हैं, तो ये वेरीफाई हो गया। अब ऐसे थर्ड पार्ट a इक्वल्स 75 एंड b इक्वल्स टू 84। सो LHS इज a minus b. A is 75 minus b is 84. 75 minus plus 84. So 9 and 8 or 15. Now RHS is a plus b. A is 75 plus b is 84. So LHS equals to RHS, यानी कि a माइनस b इक्वल्स टू a प्लस बी, यानी दोनों वैल्यूज जो है वो इक्वल होती है। सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट आर योर होमवर्क, नोट डाउन इट। a इक्वल्स टू सेकेंड पार्ट a इक्वल्स टू 118, b इक्वल्स टू 125 एंड फोर्थ पार्ट a इक्वल्स टू 28 एंड b इक्वल्स टू 11।